and career after MBBS, please? Thank you so much for giving me the opportunity. I think the couple of things that you can do during your medical school, medical college mein you can do electives. Electives are basically you are visiting medical students in the United States, जहाँ पर आप you rotate sometime 1 month or 2 months. So when they are looking your application, so they usually look for 5 things. उसमें सबसे first of all your clinical, if because some electives program they require your USMLE step 1, जो आजकल is just pass and fail, so you don't need the scoring. So you need to be mindful which program you are applying. Either they require USMLE step 1 or not. But having USMLE step 1 in your 4th year will open a lot of doors for elective opportunities. Second thing is, whenever you apply, they required some personal statement, why you are why you want to pursue this electives in this specialty. And for that reason they want to have your clinical background, like for example if you're applying in internal medicine, what things excited you to choose internal medicine, what things excited you for you to apply for this electives. The second thing they look for your teaching, like if you have any teaching for medical students, even teaching in the community that you may have performed, and that teaching does not only mean in the medical college, like if you have done any teaching during your high school tutoring, that will include. The third thing they look for your any volunteer activities or the community activities that you have done. Maybe you participated in some teaching in different schools, participated in any community activities, participated in any volunteer activities. The fourth one is any leadership, like if there are different committees in different medical colleges, so if like there are student committees, so if you participate in any of those activities. And the fifth is your research or the publication. And the research doesn't mean that you need to have a big data kind of study. Even if you publish some of the posters, that helps you to become a better candidate. Thank you sir. सर एक और मेरा क्वेश्चन है आपसे कि वो ये है कि बच्चे इलेक्टिव करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो पेड हैं या फ्री हैं. कोई फ्री स्कॉलरशिप पे भी होते हैं कुछ इलेक्टिव्स वगैरह? जी, अपॉर्चुनिटीज दोनों की ही होती हैं. काफ़ी ज़्यादा ख़ास तौर पे स्टेप 1 अगर आपने किया हुआ हो तो उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं. अगर स्टेप 1 ना हो फिर तो ऑप्शन काफ़ी लिमिटेड हो जाती हैं. तो उसमें कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि जो आपसे ट्यूशन फी चार्ज करती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो चार्ज नहीं करती. तो इसमें यही होता है कि आप इंस्टीट्यूशंस को देखते हो कि कौन से इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रहे हैं, और उनका यूजुअली वेबसाइट होती है विजिटिंग मेडिकल स्टूडेंट, जो उनका पेज होता है. तो वहाँ पे दे हैव द इंफॉर्मेशन के इस यूनिवर्सिटी इस स्पेशलिटी के इलेक्टिव्स के इतने पैसे हैं, इसके नहीं, और कुछ के नहीं भी होते. एंड सर यूके और यूएस व्हिच वन इज बेटर फॉर द इंडियंस एंड पाकिस्तान? देखें, बेहतर क्या है ये तो आपके अपने ऊपर है. ज़ाहिर बात है USMLE करने में, उनके एग्जाम पास करने में एक वो सेट पर प्रोसेस है, टफ है, लंबा काम है. और यूके में मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपनी वो हाउस जॉब भी कर लेते हैं, अपनी ट्रेनिंग भी कर लेते हैं, और उसके साथ साथ वो उसको करते रहते हैं. तो अगर तो फाइनेंशियल आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं कि जिसकी वजह से आप परसू नहीं कर पा रहे, या आपकी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इतने ज़्यादा लंबा जर्नी नहीं कर पा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है खुदा ना खास्ता आप जिंदगी में कोई फेलियर हैं या जिंदगी में जो है ना आपको कामयाब नहीं हो सकते. आप अपने मुल्क में रह के भी अगर आपके हालात इस तरह हैं, आप एक्सेल कर सकते हैं. और इसमें यूके है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इवन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज लाइक कतर है, UAE है, दे हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बेहतर है, ये आपने डिसाइड करना है अपने हालात के लिहाज से. अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिहाज से, डेफिनेटली जो यूएस में जब आप रेजिडेंसी और ट्रेनिंग कर लेते हैं तो जो आपकी सैलरी होती है और जो उसके बाद जो आपका पैदा होता है वो डेफिनेटली वे हायर होता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. सर एक और मेरा क्वेश्चन है, वो ये है कि आयरलैंड में मतलब सुनते हैं हम लोग कि वहाँ पर बस आपको टेस्ट भी नहीं देना पड़ता और आप जा सकते हैं. सर उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा आप बता सकते हैं? जी, मेरा जितना आयरलैंड के बारे में दोस्तों से भी बात होती है, वहाँ पे आप एज अ मतलब आप का ये नहीं होता कि आप स्पेशलाइजेशन के लिए हो, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है. जैसे यूएसए में तो आपको आता है, आपको रेजिडेंसी होती है, आपको फेलोशिप मिलती है, तो आपको एक स्किल सेट मिलता है. ठीक है. आयरलैंड में जो मुझे सुनने को मिला वो जॉब होती है, आपको पे के लिए वो अच्छा होता है, करियर जर्नी के लिए वो कितना, उसके बारे में मुझे इतना ज्यादा मैंने लोगों से सुना कि वो शायद इतना हेल्पफुल ना हो जितना यूएस और यूके होता है. तो अगर आपको पैसे और वो भी एक बहुत
कॉमन एक वजह होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त आपको फाइनेंशियली कुछ स्टेबिलिटी की जरूरत है, तो आयरलैंड, इवन मिडिल ईस्टर्न कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये भी बहुत अच्छी आपको एक हैंडसम सैलरी बेस्ड ऑन योर डिग्री ऑफर कर देते हैं। आप उससे कुछ सेव करते हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द एक्सपेंसिव और द लॉन्गर एग्जाम्स। मतलब सर ये जो मिडिल ईस्ट वगैरह है उनके लिए हमें ये यूएसएमएल वगैरह नहीं चाहिए होता? जी, जॉब के लिए तो नहीं चाहिए होती ना, चाहिए। वो तो अक्सर जॉब आई भी होती हैं कि आप एफसीपीएस हो, इतने साल की ट्रेनिंग हो, तो उसमें आपको वो जॉब मिल जाती है। और काफ़ी मैंने देखा है कि लोग वो क्योंकि यूएसएमएल अगर आप देख लें तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है। यूएस एग्ज़ाम के पैसे हैं, जाने के पैसे हैं, मैच के पैसे हैं, इंटरव्यूज़ के पैसे हैं, जो आजकल तो वो वर्चुअल हो रहे हैं। तो काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वो पहले कुछ अर्सा कर लेते हैं और फिर जाते हैं। सर जो बैचलर डिग्रीज हैं, बैचलर डिग्रीज, इसके बाद सर हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं? आपने भी एफसीपीएस का कहा कि उसके बाद आपको सऊदी अरेबिया वगैरह मिडिल ईस्ट में ऑफर आ जाती हैं, तो आफ्टर बैचलर हम फिजिशियन एज ए मतलब कहीं पे जा सकते हैं? बैचलर एमबीबीएस के बाद जी देखें, कहीं पर भी आप अप्लाई करते हैं ना तो आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है। और आजकल क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, मेडिकल स्कूल, मेडिकल कॉलेजेस इतने ज़्यादा ओपन हो गए हैं कि आप कहीं पर भी जाएंगे वो आपसे एफसीपीएस तो मिनिमम काफ़ी जगहों पे मांगते हैं, आपसे वो एक्सपीरियंस रिक्वायर करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी होता है ये है कि आप उनको रिक्वायर करें। और अगर खुदा ना खास्ता आपको कहीं ऐसी जगह जॉब मिल भी जाती है कि जहाँ पे इतना एक्सपीरियंस रिक्वायर ना हो सकता है कि वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म में ना हो, तो आप शॉर्ट टर्म भी देखें और लॉन्ग टर्म भी देखें। लेकिन हैविंग अ गुड डिग्री विल ओपन लॉट ऑफ डोर्स। थोड़े से शायद देर में खुलेंगे, लेकिन वो एक सॉलिड डोर्स आपको खुल जाएंगे।